Good morning, students. In the previous class, we have completed exercise 23A, in which we have covered the topic perimeters. Now, today we will start C exercise, and B exercise is cut from your syllabus. So, we will start with the C exercise, in which we will cover the topic area. We have done perimeter of rectangle and square, and now we will find what will be their area. First of all, the unit of area is always in meter square, centimeter square. अब पेरीमीटर आपका था मीटर और सेंटीमीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला करना है तो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेथ. एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, द फॉर्मूला विल बी साइड स्क्वायर. साइड को आपने दो बारी मल्टीप्लाई करना है. रिलेटिंग टू दिस फॉर्मूलाज वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 23C. क्वेश्चन नंबर 1. In question number 1 we have to find the perimeter also and area of a rectangle. I am doing question number 1, third part. It is given length equals to 8 meter and breadth is given 9 decimeter. First of all, whenever we have to find the perimeter or area, you have to notice it that the unit should be same. Unit same होने चाहिए. So here the units are not same. First we will convert it. 1 decimeter equals to 10 meter. एक डेसीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 10. तो 9 डेसीमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 9 into 10 मीटर. So breadth will be equals to 90 मीटर. हैव यू गॉट इट? तो हमने दोनों का जो लेंथ और ब्रेथ का जो यूनिट है वो आपने मीटर कर दिया. नाउ वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द पेरीमीटर. वी हैव ऑलरेडी डन. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2L प्लस B. सो 2 लेंथ 8, ब्रेथ 90 मीटर. दोनों मीटर्स में थे. सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई इट, add it. 90 plus 8, 98 meter. So after multiplying 8 you will get 196 meter. Now we have to find the area. Area of rectangle equals to length into breadth. So length is 8 meter into breadth is 90 meter. So it will be 720 meter square. This is your answer. So in this part, question number 1, you have to find the perimeter and area. First of all, you have to see that the unit should be same. Now we will see one more part, fourth part. Length is given 6 hectometer and breadth is given 8 decameter. This was decimeter and this is decameter. Now there is no relation between hectometer and decameter. So we have to convert both these hectometer and decameter into meter. How will you change it? Length. 1 meter, 1 hectometer is equals to 100 meter. So 6 hectometer will be equals to 6 into 100, that is 600 meter. Same decameter also you will convert it into meter. 1 decameter is equals to 10 meter. So 8 decameter will be equals to 8 into 10, 80 meter. So you have changed length also into meter and breadth also into meter. Now the units are same. You will find the perimeter of rectangle, that is 2L plus B. 2 length is 600 meter plus 80 meter. When we add it, you will get 680 meter. Multiply it, you will get 1360 meter. Now find the area. Area of rectangle is length into breadth. Length is 600 meter, breadth is 80 meter. You have to change these, you have to take these values. So what you will get? 6 8s are 48 or 3 zeros meter square. यहाँ पे आपका यूनिट मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर विल बी इन मीटर. दिस इज योर आंसर.
So like this you will complete question number 1 all the parts. अब यहाँ पे लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो पहले आपने इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है. व्हेन यू विल चेंज इट इनटू सेंटीमीटर इट विल बी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये क्या आ जाएगा 125 सेंटीमीटर. दिस यू ऑलरेडी नो हाउ टू चेंज इट. जो अलग थे हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, आई हैव टोल्ड यू. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर. अब आपको स्क्वायर के फाइंड करने हैं. सो आई एम टेकिंग द थर्ड पार्ट. साइड मेजर आपको गिवन है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर. तो आप किसी में भी चेंज कर लो, या मीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर में. एज यू नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर क्या होंगे 1 इंटू 100 प्लस 20, दैट इज 120 सेंटीमीटर. और अगर आपने मीटर में करना है तो यह आ जाएगा 1.20 मीटर. दोनों में से किसी में भी आप चेंज कर सकते हो. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर. नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू साइड. आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ मीटर, मीटर वाली वैल्यू ले रही हूँ मैं. तो 4 इंटू 1.20 मीटर. सो व्हाट यू विल गेट 4.80 meter. Now you will find the area of square, that is side square. Side square का मतलब क्या है 1.20 का स्क्वायर, which is 1.20 into 1.20. तो आप मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 12 दैट इज 144. 2 zeros ये वाले आ जाएंगे आपके पास. अब आपने डेसिमल कैसे लगाना है, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3 4. मल्टीप्लाई है तो 4 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4. तो दिस विल बी 1.44 मीटर स्क्वायर. जीरोस की वैल्यूज नहीं लेनी आपने. सो लाइक दिस यू विल डू क्वेश्चन नंबर 2 योरसेल्फ, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, it is given the perimeter of rectangle. Now perimeter of rectangle is given, rectangle plot of land, that is given 240 meter and length is given 63 meter. You have to find the breadth भी आपको फाइंड करनी है and area also. So finding the breadth you will use the formula of perimeter of rectangle, क्योंकि जो चीज़ आपको गिवन होती है आपने उसी का ही फॉर्मूला यूज़ करना है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला था आपका 2l प्लस b. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 240 मीटर. 2 लेंथ इज गिवन 63 मीटर प्लस ब्रेथ विच इज यू हैव टू फाइंड इट. नाउ हाउ यू सॉल्व इट, 2 को पहले आप इससे डिवाइड करो 240 अपॉन 2, 63 प्लस b, ये आ जाएगा आपका 120 इक्वल्स टू 63 प्लस b. तो b क्या हो जाएगा 120 माइनस 63. तो 120 माइनस 63 विल बी इक्वल्स टू 57. सो ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 57 मीटर. कैलकुलेशन ध्यान से करनी है और ये भी देखना है कि यूनिट सेम होने चाहिए. दोनों मीटर में थे तो हमने कोई यूनिट चेंज नहीं किया. नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. जौन सी शेप का आपने पेरीमीटर फाइंड किया उसी शेप का आपने एरिया भी फाइंड करना है. दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इज गिवन 63 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 57 मीटर. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 63 into 57. This will be equals to 3591 meter square. कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके आपने शो करनी है रफ वर्क में. साइड में रफ कॉलम बनाकर यू हैव टू सॉल्व द कैलकुलेशन. दिस इज योर एरिया. Similarly is the fourth part, but I am telling you, see here, question number 4. It is given perimeter of rectangular grassy plot. अब आपका फिर से rectangular glassy plot है, that is 189 meter and breadth is given to you. पहले आपको length given थी, अब breadth given है. कोई बात नहीं, अपने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है and unit are also same.
तो पहले आपको पेरीमीटर गिवन है, उसी का ही फॉर्मूला लोगे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2L प्लस बी. दिस इज गिवन 189 मीटर इक्वल्स टू 2L प्लस बी. सॉरी, L ब्रेथ इज गिवन 10.5. नाउ आपने 2 को इससे डिवाइड कर देना. 189/2 इक्वल्स टू लेंथ प्लस 10.5. क्योंकि 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. उधर जाके इसने क्या हो जाना है, डिवाइड. सो यू विल डिवाइड इट. आफ्टर यू डिवाइड इट तो ये डेसिमल में आ जाएगा 94.5 इक्वल्स टू लेंथ प्लस 10.5. सो लेंथ इज इक्वल्स टू 94.5 माइनस 10.5. तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.484. तो इट विल बी 84 मीटर. नाउ फाइंड द एरिया. एरिया ऑफ plot, rectangular plot equals to length into breadth. Length is given, we have already find it, 84 meter into breadth, that is 10.5 meter. Now you will multiply it and solve it yourself. What will come? That the unit will be meter square. अपने आप मल्टीप्लाई करोगे 84 और 10.5 को and you will find what will be the answer. So for today, go through the formulas of area and perimeter of rectangle and complete question number 1 to 4 in your maths register. Thank you.